चलो जी। कैसे कैसे बच्चे हैं? हाँ, hey everyone, yes my 10th class, so we are doing AP. I hope so कि आज हम ये AP का last part कर रहे हैं and it should finish, right? So we were there doing AP 5.3, so I think we should start up. It was part 9 in which the things are given to us as A is equal to 3, N is equal to 8 and sum is given to be 192, right? So you have to find D. D5. D5, yes. I think this question we had done, what I am feeling, right? याशना क्या बोलेगी? Okay, beta. So we were there on question number 8 doing our AP. So I think we should get started. Right? We have to finish AP and we'll try ki we are going to finish this chapter in this class only. Okay. So now question number 8 is quite interesting. What it is saying, find the sum of first 51 terms. That means you have to find out S51, right? हमें S51 find out करना है and what you had given things are second and third terms are 14 and 18. That means we have to find AS51 and we are given A2 is equal to 14 and A3 is given to be 18, right? So now we don't have A, we don't have D, but we have N and we need to find out S51. So now first of all we will reduce this given things to the journal form. Yes. Nanika, आप मुझे बता सकते हो what will be the journal term for A2? It will be A plus D is equal A to plus D. okay. Sheetal, journal term for A3? A plus 2D. A plus 2D is equal to 18. So now we will subtract the two equations and I'll be getting minus is equal to minus 4. That means I got the value of D as 4. Now what is it? A is equal to 14 minus D. Yes, 14 minus yeah, 14 minus D. Okay, beta. So this one will come out to be as yes. बताओ बेटा A क्या आएगा? A will come out to be 10, right? 14 minus yes, beta. 14 minus 4 will give us 10. So now we have A, we have D. Yes. ठीक है बेटा जी. So now I have got D, I have got A as 10. So now I will utilize the formula for calculating the sum, right? और sum calculate करने का क्या formula होता है बेटा? Yes, what is the formula for calculating sum? It is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 d, right? This is the formula and now we will put the given values which are given to us and the values are n is 51, right? 51 over 2 bracket 2 multiplied by 10 which becomes 20 plus n minus 1 becomes 50. 50 into 4 will become 200. I am just doing this way only. So it will be 51 by 2 into 220, right? So this will become 110. Yes, Sheetal, please multiply this for me. It will be yes 5
it will be 5610. Yes, so this becomes your answer. Yes, is it clear? Yes बेटा जी, Yes, ma'am. आपको दिख रहा है बेटा, स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके बेटा जी. चलिए, we'll move on to the 9th question now. 9th क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. we'll see इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें कैसे करना है उसको. देखिए, you have to what you are given as the sum of first 7 terms is 49. मतलब 7 terms हैं, उनका जो sum है that is 49 और sum of 17 terms is 289. got my point? Yes, ठीक है, ma'am. हमें क्या क्या गिवन है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन इज S7 is equal to 49, S17 is equal to 289. Right? Clear? So we have to calculate Sn. Is that clear? अब Sn calculate करने के लिए we need to have A, we need to have B. We don't have that thing. So now we will expand this and expand this. So we will have two equations in the end. जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं S7 में, जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इट विल बी n/2 into 2a plus 6d, right, is equal to 49. Yes, clear? This 7 will struck off this 49 and this 2 will go to this side. So it will become, our first equation will become 2a plus 6d is equal to 14. I'll take 2 as common, so I'll get a plus 3d is equal to 7. I'll say this to be my first equation. Similarly, for the second S17 which is given, I'll write down 17 by 2 is not is equal to, it will be into, right? Okay, into 2a plus 17d matlab 16d is equal to 289, right? This is the perfect square of 17 only. So it will become 2a plus 16d is equal to 34. Again, I'll take a 2 as common, so I'll be getting a plus 8d is equal to 70. This will be my second equation. Now I'll subtract the second equation from the first equation, right? So my a got struck off and I have got minus 5d is equal to minus 10. Minus minus also got cancelled, so d is coming out to be 2. Right? Clear? Now what is a? A is equal to 7 minus 3d, right? हमने first equation से इसको find out किया. So now 3d मतलब 3 into 2 6, 7 minus 6 is 1. So that means A is coming out to be 1. Now we will use the formula of Sn, which states that n/2 into 2a. 2a मतलब 2 into 1 plus n minus 1 into 2. हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी n/2 इंटू, यस बेटा, 2 प्लस 2n माइनस 2. -2 से +2 कैंसिल हो गया, राइट? सो दिस विल बिकम n/2 इंटू 2n. दिस 2 गॉट कैंसल्ड आउट बिकॉज आपका 2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, राइट? सो इट बिकम्स n² एंड दिस बिकम्स माय आंसर. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है या मैं आपको दोबारा एक बार समझा दूं? मैम एक बार दोबारा समझा दो. ठीक है, अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में what we have done, what was given to us. This question is very interesting and very important. देखो, हमें given है S7. S7 is equal to 49. तो हमने सबसे पहले क्या किया, S7 को यूटिलाइज करके हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना ली. S7 में हमने अपना फॉर्मूला डाला. S का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? n/2 into 2a plus n minus 1d. We don't know a, we don't know d, but we know n. ठीक है, हमें n मालूम है. उसकी वैल्यू हमने जब यहाँ पे डाला, we have calculated एक इक्वेशन हमने फ्रेम अप कर ली, which came out to be as 2a plus 6d is equal to 14. उसके बाद we took 2 as common from both the sides. जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो you got a plus 3d is equal to 7. Similarly, जो S17 गिवन था, उससे आपने एक सेकेंड इक्वेशन फ्रेम आउट की, which came out to be as 2a plus 16d is equal to 34. हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, so I got a plus 8d is equal to 70.
तो इससे इस दो इक्वेशन से मुझे डी और ए की वैल्यूज मिल गई, राइट? नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर Sn. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d. Now we will put the values of a and d in this. और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, you are getting Sn is equal to n square. Yes, beta, it is clear now. Nanika, is it clear? Yes. Okay. चलिए. Now we will move to next question. Next question is, you have to show that A1, A2 to AN form an AP, जहाँ पे AN जो है it is defined as this. अब इसमें हमें कैसे प्रूव करना है कि ये AP है? अच्छा, AP का बेसिक फंडा क्या है भाई? हमारा जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? सेम, राइट? सो अब हमें इन्होंने एक चीज बता दी, जो AN है ना, दैट इज इक्वल टू 3 plus 4n. अब फर्स्ट केस में हमने n की वैल्यू पुट की 1, राइट? So we will be getting 3 plus 4 into 1. So what I am getting? 7. Right? Now A2. A2 is equal to 3 plus 4 into 2. So 8 plus 3 is 11. So हमारा A2 क्या आ गया? 11. ठीक है? Next A3 कैलकुलेट करते हैं. A3 में क्या आएगा? 3 plus 4 into 3. So this comes out to be 15. So हमारी क्या AP बन रही है? A, A2, A3. तो A क्या है? 7, then you have 11, then you have 50. Similarly आप AN करते जाओगे. तो क्या हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है? Yes. A2 minus A1. Why no man? It is coming out to be same. देखो कैसे नहीं सेम आ रहा, बताओ. 15 minus 11 is, सॉरी यहाँ पे तो 15 नहीं आएगा. 11 minus 7 4, और यहाँ पे क्या है? 15 minus 11 4. So it is same. Yes. So yes, it is an AP. ठीक है जी? Okay. Is that clear? Have you copied down? Copy down कर लिया बेटा? कर रहे हो या मैं इसको इरेज कर दूं? कर रही हूँ. So here also you have to find out the first term, second term and the third term. So Sheetal, what is your first term coming out to be as? 4. 4. Very good. Okay, what is the second term? 1. 1 or minus 1? Minus 1. Minus 1, yes. Now what about the third term? 6. 6 or minus 6? 6. Minus 6 बेटा. 9 minus 15, right? क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी बड़ी होती है हम उसी का ही साइन पुट अप करते हैं ना. ओके ओके. Nanika, can you tell me the fourth one? 9 minus 20. So it will be, yes beta, it will be minus 11. yes, minus 11. Very good. So अब can we see the thing? अगर आप इसको वैसे ही देखो ना, या 5, 10, 15, 20, अगर आप इसको देखो ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस्ड में है, राइट? एक 5 का टेबल चल रहा है. सो ऑब्वियसली आप किसी चीज को सिस्टमैटिक वे में माइनस करो. जो नेक्स्ट चीज आप माइनस करोगे उसमें पहले आप 5 ऐड कर रहे हो. सो इसमें आपका जो डी आएगा दैट विल बी, यस, -6 minus 1. तो इट विल बी -5, राइट? तो ये आपका डी आ गया. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब हर केस में ये डी जो है आपका सेम रहेगा. तो यस, इट इज एन एपी. क्लियर? यस मैम. ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेना. अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा क्वेश्चन कभी भी, ठीक है? लेकिन उसको सुनना ध्यान से और उसको सुना. व्हाट इज गिवन if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. This is n square, although वो आ रहा है 2n करके आ रहा है, so don't go for that. What is given बेटा? देखो, हमें उसने ये कहा है first n terms.
ठीक है, उसमें जो आपका Sn होता है दैट इज इक्वल टू 4n माइनस 4n स्क्वायर, एक ऐसी एपी है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट a3, then you have to find out a10 and an, क्लियर। अब देखो ये वाली वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे n की जगह वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2, राइट, n इज इक्वल टू 2, सो s2 कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया, s2 इज इक्वल टू 4 into 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 8 minus 4 4, तो ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आपका क्या आ रहा है 4, क्लियर, ठीक है। अभी इतना सा अभी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताना है क्या है, हम यहाँ पे S1 निकाल लेते हैं, S1 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर मतलब 3, यस। नाउ तनीषा, तनीषा बेटा S1 का क्या मतलब है कि कितनी टर्म्स हुई इसमें, 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नंबर वाली टर्म है सिर्फ, तो फर्स्ट नंबर वाली फर्स्ट नंबर वाला। हाँ यस वेरी गुड, तो हम फर्स्ट नंबर वाली टर्म को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज, ए, राइट, हमारी फर्स्ट टर्म जो है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ए, यही होता है ना, यस। नाउ शीतल, S2 का क्या मतलब है, S2 कितनी टर्म्स का सम है, A2, सिर्फ A2 सम है बेटा, ये N2 है, मतलब क्या हुआ, A प्लस A2 इज इक्वल टू S2, सम कर रहे हैं ना हम, कॉन्सेप्ट समझ में आया, गॉट माई पॉइंट और नॉट, yes ma'am, मतलब जब हमने सम टू टर्म्स का बोल रहे हैं, वो टू टर्म्स कौन सी हुई, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, राइट। अब हमें इसमें से S2 पता है, A हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या हम A2 निकाल सकते हैं इसमें से, यस मनिका, yes ma'am, is it possible for us to calculate A2 now, राइट, तो हम A2 कैलकुलेट करने के लिए अपने सम में से, सम ऑफ द टू टर्म्स में से एक टर्म को हम माइनस कर देते हैं, राइट, सो इट इज 4 minus 3 which comes out to be equal to 1, yes, I hope it is clear, yes फर्स्ट टू ma'am, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फर्स्ट टू टर्म्स का क्या आया हमारा आंसर 4, सेकेंड टर्म हमारी क्या आ रही है 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आई थी हमारी 3, राइट, ठीक है। अब D निकालना आसान है, सेकेंड टर्म को अगर हम एक्सपैंड करते हैं इट विल बी A प्लस D इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू 1, सो D क्या हो जाएगा 1 माइनस A, तो 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2, अब आप A3 और A10 कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं ना हम A3 is equal to A plus 2D which comes out to be equal to 3 minus 4 which comes out to be equal to minus 1, clear, next yes ma'am, A10 के लिए क्या बन जाएगा A plus 9D, I have some space crunch, मैं इसको ना ऊपर करना भूल गई, तो अब मैंने सारा कुछ लिख लिया, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, इट विल बी वाइप्ड ऑफ सारा, ठीक है, तो A is 3 minus 18, इट विल बिकम minus 15, यस, और an यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, an विल बी इक्वल टू, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, राइट, सो a इज हेयर, यस, a की वैल्यू क्या आई थी 3 प्लस n माइनस 1 तो हमें मालूम नहीं है, एंड d इज माइनस 2, so now we will do this simplification, it will become 3 minus 2n plus 2, तो क्या आ जाएगा 5 minus 2n, ये हमारा आंसर आ जाएगा an, ठीक है। इसमें आप an टर्म जो मर्जी डालो, इसमें n की वैल्यू जो मर्जी डालो, आंसर विल बी द सेम, आप करके देख लो, अगर हम इसमें a10 डालते हैं, आप इसमें n की वैल्यू 10 डाल के देख लो, 5 माइनस 20 कितना होता है माइनस 15, हमने वही कैलकुलेट किया, ओके, तो ये इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, समझ आया क्वेश्चन,
शीतल आप एक बार मुझे इसको रिव्यू करवाओ दोबारा से. Yes. Now our 12th question is find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. अब first 40 integers divisible by 6 मतलब आपका जो a होगा that will be yes 6 के टेबल पे सबसे पहले कौन आता है? 6 1 जा 6. I'm getting an answer from Mannat. So 10th class ठीक है. a is equal to 6. यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? 6 का होगा, right? n is given to be 40. So what we have to do? We have to calculate the sum of these 40 integers, right? तो हमारा क्या बना? 40 upon 2 into 2a, right? 2a is 2 into 6, which means it is 12 plus n minus 1d. n is 40, 40 minus 1 is 39, so 39 into 6, right? So हम इसको cut off कर देते हैं. This will be 20 into 12 plus right? Yes, ma'am. ये आपका आंसर है. Is that clear? ननिका आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं बेटा? अभी नहीं याद करे होंगे बिकॉज ऑफ योर टेस्ट. फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. वेरी इजी चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन फैक्ट. नाउ इट्स क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके चलें फिर मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस आवर नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. ओके अब इसमें आपने मल्टीपल्स का सम निकालना है. सो इसमें भी क्या फंडा लगेगा? सेम वही चीज है. व्हाट इज द थिंग कि आपको जो a गिवन है दैट इज मल्टीपल मतलब आपने टेबल देखना है. सो a will be equal to 8, difference will also be equal to 8 and n is equal to 15. That is given to us. So our formula says Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 d, right? So we'll put the required values. जो भी given values हैं वो हम इस formula में we will put. So we'll get yes. Now tell me Tanisha, what is n in this case? Yes beta, what is n? 15 by 2. Okay, what is 15 by 2. हाँ जी. Nanika, what is a in this case? 8. 8. Tanisha 15 तो वो हो गया. हम यहाँ पे लिख देंगे 14 into what is d? Tanisha 8. 8. Okay. Sheetal, tell me what is 14 8 za? Yeah, ma'am. 112. हाँ जी. तो into 8 तो इसे हम अब इसको मल्टीप्लाई करके तनिषा फटाफट बताओ मुझे. 64 into 15. Yes. Now our next question is you have to tell you have to find the sum of the odd numbers between 0 and 50. Yes, Nanika, what do you mean by odd numbers? Yes, beta, what do you mean by odd numbers? 0. Which do not come in the table of 2. तो मुझे ये बताओ फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 0 ऑड होगा? नहीं. 1. 1. नेक्स्ट नेक्स्ट 3. 3. नेक्स्ट 5. 5. नेक्स्ट 7. 9. सब पे जाते हैं. It will be 49, right? So you have to tell me S N. अब पहले तो मुझे ये बताओ काइंडली म्यूट योरसेल्फ बेटा, बहुत नॉइज आ रहा है ना? हाँ Sorry, ma'am. हाँ कोई बात नहीं बेटा. चलो हाँ जी. शीतल, व्हाट इज a in this case? 1. 1. Very good. Tanika, what is d in this case? Ma'am, 3. नहीं बच्चा, d होता है डिफरेंस. वो कैसे निकालते हैं बेटा? सक्सेसिव टर्म्स को हम माइनस कर देते हैं. जैसे a2 minus a1. a2 क्या है? 3. 3 minus 1. Ma'am, 4. No, 3 minus 1. प्लस नहीं माइनस.
सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे। minus 1, 2. 2, तो 5 minus 3, Ma'am, 2. हाँ जी, 7 minus 5, 2, Ma'am, 2. yes 2, तो हमारा डिफरेंस क्या हुआ 2। ओके शीतल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर SN? Sn is equal to n upon 2 वेरी गुड, bracket में 2a plus n minus 1 into d. वेरी गुड। अब तनीषा, आप बताओ, should I now use this formula or do I need to get anything else also? What I am, जो भी चीजें I have written down, ये मैंने write down Yes, ma'am. तो डू यू थिंक कि अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या एक और रॉ मटेरियल हमारा रह गया है जो हमें ढूंढना है? मैम एक यस, क्या है वो रॉ मटेरियल? Ma'am, n. n, वेरी गुड। N. तो शीतल, नाउ यू टेल हाउ विल यू कैलकुलेट n? अभी हमारे पास n नहीं है, Sn कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव n। यस बेटा, ये 49 क्या है शीतल? लास्ट ऑड नंबर। लास्ट इसको क्या बोल सकते हैं? Ma'am, l. एल भी बोल सकते हैं, एक और चीज बोल सकते हैं an. SN. वेरी गुड, an। नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। Ma'am, n Yes, upon ma'am. 2 bracket में a plus an. yes, an is equal to a plus n minus 1, right? an is given to be, yes, so we were doing कि an जो calculate करना है, we will utilize our last term, right? So a is equal to, yes Nanika, what should I put the value of a as? an is equal to n upon 2. नहीं, what is a? a क्या है यहाँ पे? 1. 1, n, ठीक है, difference is 2 is equal to 49. This one will go to this side, so it will get subtracted. So n minus 1 into 2 will be equal to 48, or I can say n minus 1 is equal to 24. So therefore n is equal to 25. Now I have got all the raw material. So now I can use the formula for Sn, right? So S25 is equal to 25 by 2, right? 2 into 1 is 2 plus n minus 1, matlab 25 minus 1, which becomes 24 into 2, right? So it becomes 25 by 2 into 2 plus 48 is 50, right? So this is 25. 25 का square क्या होता है बेटा जी? It is 625, right? So this is your answer. Clear? चलिए, now we will move on to our next question. Next question is also very मजेदार। क्या है वो क्वेश्चन? देखिए, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain day. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट गिवन है, अगर आप डिले करते हो तो आपको ये फाइन देना पड़ेगा, जैसे रुपीज 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। ओके, just let me check the question, right? So 6 into 39 is, yes, कितना आया भाई? 234 trees, right? ओके, तो इसमें क्या फंडा क्या था, इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि हर क्लास जो सेक्शन है बेटा, जो उस क्लास का नंबर है उतने ही ट्रीज ग्रो कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्लास का जो सेक्शन होगा वो 1 ट्री ग्रो कर रहा है, सेकंड क्लास का जो स्टूडेंट होगा जो सेक्शन है वो 2 ट्रीज ग्रो कर रहा है, और हर क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं, तो जितने ट्रीज ग्रो कर रहा है हमें उसको इनटू 3 कर देना, तो ये आपकी एपी बन जाती है, राइट? फर्स्ट इज 3, देन 6, 9, 12, गो ऑन टिल योर 12th क्लास। सो एन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा? 12, क्योंकि आप क्लासेस कितनी ले रहे हो? 1 से लेके 12 तक क्लासेस ले रहे हो। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। आई होप यू ऑल हैव बुक्स विद यू। ओके, देखो बेटा, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ
successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2 इस तरह से, ठीक है। आपने टोटल लेंथ ऑफ इस स्पाइरल का कैलकुलेट करना है जिसमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमीसर्कल आएंगे। इसका मतलब n जो है दैट इज इक्वल टू योर 30, राइट। I think book में it's written you have to calculate 22/7, right? पाई आपने 22/7 लेना है। So I'll just make a figure for you. एक है ये, this is A. पहला जो सेमी सर्कल है वो ऐसे है, ठीक है। फिर इस तरह से है, राइट। ये एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। फिर ऐसे करते करते मतलब इस तरह से सर्कल, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल लेंथ। दिस इज A, ये L1 है, ठीक है। ये L2 बन गया, ये L3 बन गया, लेंथ हम ले रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर आप लेंथ लेके चलते हो, हम व्हाट वी से लेंथ क्या होती है सेमी सर्कल की, इट इज सर्कल की सेमी सर्कल सॉरी सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2, राइट। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? यस तनिषा, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? इट इज 2 पाई r। तो सेमी 2 pi r। यस, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? इट विल बी पाई r, है ना। तो फर्स्ट Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पे रेडियस गिवन है, दिख रहा है आपको रेडियस? दिख रहा है ना। सो इसका मतलब हमारे फर्स्ट लेंथ जो है L1 विल बी इक्वल टू 0.5 पाई, L2 विल बी इक्वल टू 1 पाई, राइट। L3 विल बी इक्वल टू 1.5 पाई, L4 will be equal to 2 pi. I am clear? Yes? Yes, ma'am. Okay. So अब मुझे ये बताओ कि अगर अब मुझे फॉर्मूला यूज करना हो, हमें इसके टोटल लेंथ निकालनी है, सो दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट S13। N क्या है? 13, 13 डिवाइडेड बाय 2। A इज योर 0.5 पाई, यही है ना, यही है ना, 0.5 पाई है। Yes, ma'am. प्लस n माइनस 1 इज 12, 12 इंटू d क्या है बेटा? आप 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 0.5 पाई, यही बचेगा। यस, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं 0.5 पाई, ठीक है। अब इन दोनों में 0.5 0. ये बन जाएगा 6, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 60 पॉइंट हट के बन जाएगा 6 पाई, तो इट विल कम आउट टू बी एज 6.5 पाई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 इंटू 65/10 इंटू 22/7। तो आप इसको अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। यस, Yes, ma'am. इसको सॉल्व कर ले। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बारी प्लीज थॉरली सुन लो। 200 logs are stacked in a manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next, so 18 in the next. So you have to tell me कि in how many rows are 200 logs placed and how many logs are there in the top row. इसका मतलब क्या है? We have to calculate n, तो हमें number of rows बताना है, ठीक है, and हमें an बताना है। ओके, सो सबसे पहले what is given? Sn is equal to 200, right? हमें Sn given है 200, right? ठीक है बेटा। Yes, ma'am. यस, और उसके बाद A इज इक्वल टू 20, क्योंकि जो सबसे पहली रो है उसमें कितना है? 20। D क्या होगा बेटा? इट विल बी 19 माइनस 20, तो क्या आएगा? -1। तो D इज कमिंग आउट टू बी -1। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। यस, so it will be 200 is equal to n/2 into 2a, मतलब 40 plus n minus 1 into -1, ठीक है बेटा। This will go to this side, it will become 400 is equal to this will be n into 40 plus minus n plus 1, ठीक है। तो 400 is equal to 40n minus 41n
minus n square, right? Or I can say minus n square plus 41 minus 400 is equal to 0. इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. अब क्या आप इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एज होमवर्क कर लेंगे? Yes, ma'am. है ना? तो आप ये n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेना. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, लेकिन वो लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो काफी समझाने वाला क्वेश्चन है, तो वो फिर आई विल मेक यू डू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे.